مناسک حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ منا سے حجاج کرام کے قافلے میدان عرفات کی جانب رواں دواں ہیں۔ زباں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ کوئی پیدل جا رہا ہے تو کوئی بسوں اور ٹرینز کے ذریعے میدان عرفات کی جانب گامزن ہے۔ میدان عرفات 33 کلومیٹر مربع رقبے پر محیط ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے عازمین حج وقوف کریں گے۔ حجاج کرام مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد خطبہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک وقت میں قصر کر کے پڑھی جائیں گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان وقوف عرفات ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ عازمین حج رات کھلے آسمان تلے قیام کے بعد بروز بدھ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد منا پہنچیں گے۔ حجاج کرام جمعرات کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی کرنے کے بعد بال منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ رواں سال 30 لاکھ سے زائد فرزندان اسلام حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کی حج کے دوران ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے منا میں پاکستانی حجاج کرام سے ملاقات کی، دوران ان کے مسائل بھی سنے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے حج مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماعی فریضہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سال بھر اس بابرکت دن کا انتظار کرتے ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران حجاج کرام کی خدمت بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود بولے، حجاج کرام کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی عازمین حج کے مسائل کے حل کے لیے خود ان کے درمیان موجود ہیں۔ مانتے ہیں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم رکھتے ہیں۔ کئی برسوں تک پاکستانی عوام دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان سے کہتے ہیں کہ LOC پر سیز فائر جاری رکھیں۔ واشنگٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میتھیو میلر نے کہا، انسانی حقوق پر تشویش سے بھارت کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ 9 مئی کو سیکیورٹی میں کوتاہی پر فوج میں خود احتسابی کا عمل مکمل۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی گئی۔ ایک ریٹائر 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک 4 اسٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم، ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار کی بیگم اور داماد گرفت میں ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ سانحہ فوج یا ایجنسیوں سے خود کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں ہو سکتی۔ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کر رہے ہیں اور یہ جاری رہے گا۔ پاک فوج کا اعلان۔ DGI SPR کہتے ہیں ان ملزمان کے خلاف ثبوت اور قانون کی بنیاد پر کیسز فوجی عدالتوں میں منتقل کیے گئے۔ ملزمان کو مکمل قانونی حقوق سمیت سول وکلاء تک رسائی کا حق دیا ہے۔ امید ہے سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران کسی شہری کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ وفاقی حکومت کے اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سے بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ چیف جسٹس اٹارنی جنرل پر برہم استفسار کیا کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، سپریم کورٹ کو داغدار نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے خلاف ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ حکومتی اعتراض پر بینچ ممبر جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو الگ کر لیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ دوبارہ سماعت پر وکیل سرمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا، میرے موکل کے بیٹے کا معاملہ ملٹری کورٹس میں ہے، ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات کیا گیا جج کر سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کو بنیادی حقوق نہیں ملتے، جبکہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ٹرائل ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ اچھا پوائنٹ ہے، تاہم امریکی قانون ان سویلین کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ریاست کے خلاف ڈٹ جائیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ بولے، امریکہ میں سویلینز کی غیر ریاستی سرگرمیوں پر ٹرائل سول عدالتوں میں ہی ہوتا ہے۔ چیئرمین PTI کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا، میرے موکل کا موقف ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کو رہا نہ کیا جائے جب ان کا ٹرائل قانون کے مطابق ہو۔ تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا کر کہا، بتایا جائے ملٹری ٹرائل میں اب تک کیا پیش
पेशरफ्त है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तहकीकात चल रही हैं, मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 अफराद से कई को छोड़ दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, उम्मीद है इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा और जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करें। अदालत ने वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से तहकीकात के लिए अदालती जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा फिलहाल मुस्तरद करते हुए केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की दो अहम मुलाकातें। इलेक्शन तारीख पर मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अबू धाबी और दुबई के हुक्मरानों से मुलाकात की है। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत की हैं मुलाकातें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांगी। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायदा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से रोड मैप तैयार आसिफ अली जरदारी के सामने रखा गया। इससे कबल नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासत के हवाले से अमूर ज़ेरे बहस आए। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुंचेंगे और आइंदा होने वाली मुलाकातों में मौजूद होंगे। अहम मुलाकातों में निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल किया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम से भी अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। दुबई में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की दो अहम मुलाकातें। सीट एडजस्टमेंट के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मुत्तफिक न हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात सामने आ गए। नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बर्थ की सीट पर मुस्लिम लीग नून डट गई। मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करने जा रही है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा की पेशगोई। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं, फैसला इलेक्शन के वक्त सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। 12 या 14 तारीख को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और उसके बाद आइन के तहत 60 दिन में या 90 दिन में, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। नहीं, डिपेंड करेगा कि अगले माहौल क्या बनता है, अगली कौन सी जमात है जो मेजॉरिटी लेके आती है। मुस्लिम लीग इस वक्त जो इत्तेहाद बना था उसमें मेजॉरिटी पार्टी है, उनका हक बनता है। अगले इंतखाब के बाद इलेक्शन की क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सी फॉर्मेशन होती है, ये डिपेंड करता है, उस वक्त देखेंगे। अभी तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करना, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और फैकल्टी के लिए पावर ऑफ बिलीव के उन्वान से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पावर ऑफ बिलीव के हवाले से मोटिवेशनल लेक्चर दिया। कहा, अगर आपका अल्लाह पर यकीन है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के फैसल मोहम्मद ऑडिटोरियम में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और फैकल्टी के लिए पावर ऑफ बिलीफ के अनवान से ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने यकीन की ताकत के हवाले से फैकल्टी मेंबरान को लेक्चर दिया और खुशगवार माहौल में सवाल किए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि सुपीरियर ग्लोबल और 3U1M जैसे प्रोग्राम पाकिस्तान में कोई नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नंबर 1 है और इस तरह सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी जल्द पाकिस्तान के नंबर 1 कॉलेजेस में होंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि सिर्फ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ही इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। क्यों? जब आप इम्प्रूव करेंगे ना, दूसरे कॉलेजेस लाजमी इम्प्रूव करेंगे। और मेरा इससे पास एक्सपीरियंस है। हमारी ये छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, आम सी सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी लोगों को वही डिग्रियां दी जा रही थी जो पहले सारे दे रहे होते थे डिग्रियां। सिर्फ एक बंदा आया यहाँ पर, प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, वो PhD एंटरप्रेन्योरशिप करके आई यूके से। उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने पहला नारा लगाया कि मेरी यूनिवर्सिटी बेरोजगारों की फैक्ट्री नहीं होगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पावर ऑफ बिलीफ ट्रेनिंग सेशन में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने शुरका से सवालात किए और बेहतरीन जवाबात देने वालों में नकद इनामात तकसीम किए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पास बेहतरीन फैकल्टी मौजूद है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है और ग्लोबल सुपीरियर के तहत हमारे तलबा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जब सुपीरियर कॉलेज की मैंने पहली ईंट रखी थी, जून का महीना था वो, और जुलाई में दाखिले हो गए थे। खंडर इमारत थी,
कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कोई लैब नहीं थी, कोई कैफेटेरिया नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई एफिलिएशन नहीं थी, कुछ नहीं था। और फारूक चौधरी साहब, आपको पता है कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट दाखिल हो गए थे। ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रीजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के साथ अहद लिया कि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम समेत अच्छी सहूलियात फराहम करेंगे और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि ट्रेनिंग सेशन से खुद एतमादी और अपने अदारे की कामयाबी का यकीन हो गया है। सुपीरियर ग्रुप ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। तकरीब के इख्तिताम पर फैकल्टी मेंबरान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम के साथ हाफिज महबूब अली। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे के लिए वर्चुअल राबते जारी हैं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को आज मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे के लिए पुरुम्मीद है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और MD IMF की पेरिस में मुलाकात के दौरान प्रोग्राम बहाली पर इत्तफाक़ राय हुआ। पाकिस्तान ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की, जिसके एवज़ मज़ीद टैक्स लगाने की शर्त आयद की गई। अखराजात में 85 अरब रुपये की कटौतियाँ करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। हुकूमत ने IMF की शर्त मानते हुए पेंशन में इस्लाहात मुतारिफ करवा दी और आमदन बताए बगैर $1 लाख तक के तरसीलात की तजवीज़ भी वापस ले ली गई। IMF की शर्त पर ही इनकम टैक्स की शरह में इजाफा भी किया गया। पेट्रोल में लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई और IMF की शर्त पर दरामदात पर पाबंदी भी उठा ली गई। इश्क मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले हीर और रांझा के शहर झंग में मवेशी मंडी कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त जारी है। रांझा और मजनू नामी बैलों की जोड़ी ने खूब धूम मचा रखी है। एक बैल का वजन तकरीबन 15 मन के करीब है। बैलों के मालिक का कहना है इसने बैलों को बड़े नाजो नखरे से पाला है। मज़ीद तफसीलात सफदर वसीम से जानते हैं। जी सफदर। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ये झंग की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, बल्कि जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी मलुवाना मंडी है। और यहाँ पर आज जो है इस पूरी मंडी में एक रांझा नामी जो है बड़े जानवर की धूम है और मेरी दूसरी जानिब जो है मजनू नामी एक जानवर खड़ा है जिनका वज़न तकरीबन 14 मन के करीब है। और इनका जो है पूरी जो यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदार, वो इनको देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इनका मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस जुनून से इनका नाम रखा है, किस तरीके से पाला है और इनका रेट क्या लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 14 लाख मांग रहा है। अच्छा, इनका नाम क्या रखा आपने? रांझा खाल गत्ती है, वंडा गत्या है, दूध पिवाया है, डलिया खवाया है। बिल्कुल, जो इस रांझा और यहाँ पर जो मजनू है, जो इनका मालिक है, वो कहता है कि इनको बड़े नाज और नखरे से उन्होंने पाला है, दूध पिलाया है, दलिया खिलाया है, पेड़े खिलाए हैं, मक्खन खिलाए हैं। लेकिन जिस नाज और नखरे से उसने पाला है उस हिसाब से जो है उन्हें वो दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पूरे यहाँ पर आए हुए मंडी में लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है इस रांझा और मजनू को जो है देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनकी बड़ी धूम यहाँ पर चल रही है। सादिकाबाद में भारी भरकम बैल, बादशाह और सुल्तान के हर तरफ चर्चे हैं। बच्चा पार्टी भी बैलों की आओ भगत में मसरूफ दिखाई देती है। बच्चे रोज़ाना अपनी कुर्बानी के जानवरों के साथ खेलते और उनकी देखभाल करते हैं। कुर्बानी के बैल भी बच्चों के साथ मानूस हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शुबान से, जो इस वक्त बादशाह और सुल्तान नामी बैलों की जोड़ी के साथ मौजूद है। जी शुबान। जी बिल्कुल, अगर बात करें कुर्बानी के जानवरों की तो सादिकाबाद में बादशाह और सुल्तान ने धूम मचाई हुई है। बच्चे खूब उनकी आओ भगत करने में मसरूफ है। बच्चे जो है वो काफ़ी उनके साथ घुल मिल गए हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इनके मालकान जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या नाम है आपके जानवर का, क्या कहना चाहेंगे? मेरे जानवर का नाम है सुल्तान। मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं रोज़ाना उसको खाना खिलाती हूँ और मैंने उसको कुर्बानी के लिए रखा है, जो कि मैं अब उसकी कुर्बानी करूँगी और वो कुर्बान जब हो जाएगा मुझे उसकी बहुत याद आएगी। बिल्कुल जी, इस वक्त और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जानवर का क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरे जानवर का नाम बादशाह है। हमने इसको कुर्बानी के लिए लिया है। हम रोज़ इसको खाना खिलाने के लिए आते हैं और जब ये कुर्बान हो जाएगा हम इसको बहुत याद करेंगे। हम इससे बहुत प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मानूस हो गए हैं। बच्चे इनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आकर खेलते हैं। बादशाह और सुल्तान ने जो है वो धूम मचाई हुई है। बच्चों का कहना है कि जब ये ईद कुर्बान पे कुर्बान हो जाएंगे तो बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जी
لاہور میں پری مانسون بارشیں انتظامیہ کے دعوے بھی بہا لے گئیں. سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل, انڈر پاسز تالاب بن گئے. لیسکو کا ترسیلی نظام بھی جواب دے گیا. شہر کے 3 اسپتال پانی سے بھر گئے. وزیر اعظم کا لاہور میں سیلابی صورتحال اور شہریوں کی پریشانی کا نوٹس. صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کو نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی. ابر رحمت بنا لاہوریوں کے لیے زحمت. رات کے شروع ہونے والی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی. 256 ملی میٹر بارش نے واسطہ سمیت سب کو چکرا کر رکھ دیا. چوک ناخدا, کوپر روڈ, 1 موریا, 2 موریا, فردوس مارکیٹ, جی پی او, لکشمی چونک, لٹن روڈ, باٹی گیٹ, شاہ جمال, چبرجی چونک, شیرا والا گیٹ سمیت شہر کے بیشتر مقامات پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. سڑکیں ندی نالوں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن راوی اور لکشمی چوک میں 171 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید اور کلمہ چوک انڈر پاسز پانی جمع ہونے پر بند کر دیے گئے. سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی. گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. گلبرگ کے علاقے میں کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید انڈر پاس میں کھڑے پانی میں گاڑی ڈوب گئی. موسلادھار بارش سے لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں جنرل اور گنگا رام میں بھی پانی جمع ہو گیا. بارش کے بعد نکاسی آب کا کام بلا تعطل جاری رہا. واسطہ حکام کے مطابق شہر کے بیشتر مقامات سے پانی کی نکاسی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے. بارش سے لیسکو کے 95 فیڈرز بند ہو گئے, جس سے شہر کے مختلف علاقے کئی گھنٹے بجلی سے محروم رہے. بجلی کی طویل بندی سے شہری بلبلا اٹھے. عدنان عزیز, نیوز لاہور. پری مانسون کے پہلے اسپیل نے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی. پنجاب کے پی اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش سے بے سیلابی ریلے سے ریلوے ٹریک متاثر. کوہلو میں نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع. راولپنڈی کا نالہ لئی بھی بکھرنے لگا. پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 13 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. پری مونسون بارشوں کی انٹری. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان شہر بادل جم کر برسے. طوفانی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. ٹریفک کا نظام متاثر. بارش کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات. 10 زندگیاں چلی گئیں. نارووال کے نواحی گاؤں رتیا میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. پسرور کے نواحی گاؤں بھلر روہی والا میں 4 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے. گجرانوالا میں خاتون جاں بحق, بچی زخمی. شیخو پورہ میں ایک شخص دم توڑ گیا. کھل کر ہونے والی بارش نے ممکنہ خطرے سے آگاہ کر دیا. سبی میں سیلابی ریلے سے ریلوے ٹریک متاثر. کوہلو میں نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع. راولپنڈی کا نالہ لئی بھی بکھرنے لگا. پانی کی سطح 10 فٹ تک بلند ہو گئی. پنڈ دادن خان میں تیز بارش کے باعث پہاڑی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. محکمہ موسمیات نے 30 جون تک پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے. کراچی کے جنا اسپتال میں گزشتہ روز خاتون کی لاش کا معاملہ. پولیس نے عائشہ کی ہلاکت کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج کر لیا. گاڑی میں خاتون سمیت 2 افراد عائشہ کی لاش اسپتال لائے اور چھوڑ کر فرار ہو گئے. کراچی میں عید قربان میں چند دن باقی رہ گئے. ایک جانب منڈی میں جانوروں کی خریداری میں تیزی دکھائی دیتی ہے تو دوسری جانب شہر میں قربانی کے جانوروں کی لوٹ مار کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے. چند روز کے دوران قربانی کے لیے لائے گئے لاکھوں روپے مالیت کے 82 مویشی چرا لیے گئے. ڈیری فارمرز کی منمانیاں. کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا. اضافے کے بعد 1 جولائی سے دودھ 230 روپے فی لیٹر میں فروخت کیا جائے گا. یو ایس کونسلیٹ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اشتراک سے پاکستان کے مختلف شہروں میں انگلش لینگویج پروگرام انگلش ورک کا انعقاد کیا گیا. مقامی ہوٹل میں انگلش ورکس کے گریجویٹس کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی, جس میں کونسل جنرل یو ایس کونسلیٹ لاہور کے اور ساتھ ہی ساتھ کلچرل افیئرز یو ایس کونسلیٹ لاہور پاؤل گور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. امریکی کونسلیٹ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اشتراک سے پاکستان میں جاری انگلش ورکس پروگرام کے گریجویٹس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. لاہور کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم 200 طلباء اور طالبات نے انگلش لینگویج پروگرام میں حصہ لیا. تقریب میں امریکی کونسل جنرل ولیم, کلچرل افیئرز آفیسر پاؤل گارڈ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. طالبات نے مہمان خصوصی کا پرتباک استقبال کیا. تقریب میں طلباء کی جانب سے پاکستان کی ثقافت سمیت مختلف پرفارمنسز پیش کی گئیں. امریکی کونسل جنرل ولیم نے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انگلش ورک 6 ماہ کا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہے. یہ پروگرام اقتصادی ترقی اور بے روزگاری کے خاتمے میں معاون ثابت ہوگا. Language skills are the key to success in today's globalized world. English is the language of international communications, and proficiency in English allows you to fully participate in higher education
and the economic development of Pakistan. इंग्लिश वर्क प्रोग्राम में ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम में मेहमान खुसूसी को सवीनियत से नवाजा गया। कैमरामैन अहमद के साथ अब्दुल वहाब शाहिद। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के सरबराह मौलवी हैबतुल्लाह ख़ानज़ादा का कहना है कि किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते और ना ही किसी को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। अफ़गान मीडिया के मुताबिक मौलवी हैबतुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान दुनिया से अच्छे सियासी और मुआशी ताल्लुकात की ख्वाह है। तालिबान सरबराह का कहना था कि अफ़गान मईशत के बहरान और दिवालिये की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। हर किस्म की मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। शरीयत के मुताबिक ख़वातीन को उनके आरामदेह और खुशहाल ज़िंदगी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अमरीकी रियासत इंडियाना के मुख्तलिफ इलाकों में ख़तरनाक आंधी और तूफ़ान ने तबाही मचा दी। तूफ़ान की जद में आकर एक शहरी हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा जबकि 5 लाख से ज़ायद अफराद को बिजली से महरूम कर दिया गया। तेज़ हवाओं ने कई दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। बेटे ने मां को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। मिस्री पायलट अब्दुल्ला मोहम्मद अपनी वालिदा को पहली परवाज़ में हज के मुक़द्दस सफ़र पर ले गए। अरब मीडिया में गुफ्तगू करते हुए पायलट अब्दुल्ला मोहम्मद ने बताया कि वो मिस्री फ़ज़ाइये में को पायलट के तौर पर काम करते थे। हाल ही में पायलट की नौकरी मिलने पर मां को आगाह नहीं किया क्योंकि वो उनको हैरान करना चाहते थे। मां को बताए बगैर अपने साथियों के साथ मिलकर वो तैयारा उड़ाया जिसमें उनकी वालिदा हज के लिए जा रही थी। वालिदा की खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने मक्का मुकरमा जाने वाले जहाज़ के दरवाजे पर बेटे को इस्तकबाल करते पाया। कौन कब कहां किससे खेलेगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होगा। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की तारीख दे दी। तमाम टीमें को 29 अगस्त तक स्क्वाड के नाम जमा करवाना होंगे। वर्ल्ड कप के लिए तमाम टीमों के पास स्क्वाड जमा करवाने के लिए 2 महीने का वक्त मौजूद है। वर्ल्ड कप के आगाज़ से 1 हफ्ता पहले तक स्क्वाड में रद्दोबदल मुमकिन होगा। 29 सितंबर के बाद स्क्वाड्स में तब्दीली करने के लिए टेक्निकल कमेटी से इजाज़त दरकार होगी। वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर को होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप के हतमी शेड्यूल का ऐलान आज करेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। भारत में रवां साल होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को खला में भेज दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करवाया जाएगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की पहली ऑफिशियल ट्रॉफी है जिसे खला में भेजा गया। आईसीसी की जानिब से जारी की गई वीडियो में बताया गया कि ट्रॉफी को 1,20,000 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया जहां पर दर्जा हरारत -65 डिग्री सेंटीग्रेड था। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा ज़मीन के मदार से बाहर तैरता रहा। ट्रॉफी को भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारा गया। आईसीसी वर्ल्ड कप करीब आते ही कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 2019 वाले वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा करने लगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में सेंचुरी पर बाबर आजम का कहना है, हारिस और मैंने फैसला किया कि स्पिनर्स को टेस्ट मैच की तरह खेला जाए। हारिस सोहेल से कहा कि मिचेल सेंटनर को स्वीप मारना चाहता हूं। स्वीप मारने की कोशिश की तो वो अच्छी लगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। वनडे क्रिकेट में रन्स के एतबार से दूसरी बड़ी फतह हासिल कर ली। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में यूएसए को 304 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जिम्बाब्वे ने अपनी वनडे की तारीख में सबसे बड़ा स्कोर 408 रन्स भी बनाया। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। बर्लिन के ब्रैंडनबर्ग गेट पर इख्तितामी तकरीब में गेम्स की मशगल को बुझाया गया। 9 रोज़ तक जारी रहने वाले गेम्स में 176 ममालिक के 6,500 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिससे एथलीट्स खूब लुत्फानंदोज़ हुए। एथलीट्स ने आपस में अपनी जैकेट्स और सवेनियर का तबादला भी किया। स्पेशल ओलंपिक का परचम अगले गेम्स के मेज़बान मुल्क इटली के हवाले किया गया। अगले विंटर ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2025 में इटली में मुनाकिद होंगे। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। 4 पाकिस्तानी को पहमाओं ने कामयाबी के साथ नांगा पर्वत की चोटी को सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया। साजिद सदपारा और शाह दौलत ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत की चोटी को कामयाबी के साथ सर किया, जबकि इम्तियाज़ अली और सदपारा और यूसुफ अली ने भी कामयाबी के साथ माउंट नांगा पर्वत सर कर ली। को पहमा साजिद सदपारा और उससे पहले भी 6 से 8 हज़ार मीटर बुलंद चोटियाँ बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर करने का एजाज़ हासिल कर चुके। शाह दौलत इससे पहले K2 की चोटी सर करने में कामयाब रहे। इम्तियाज़ सदपारा इससे पहले G2, G1, K2 और ब्रॉड पैक सर कर चुके हैं, जबकि यूसुफ अली इससे कबल K2, G2 और ब्रॉड पैक सर कर चुके हैं। बीवी के नखरे तो हर कोई उठाता है मगर बीवी को कंधों पर कोई बिठाता है। कनाडा में मौसम गर्मा की मुनासबत से सजे मेले में अनोखी रेस का इनेकाद किया गया। आप भी मुलाहिजा कीजिए।
हॉलीवुड की पुरस्कार टीवी सीरीज द विचर के तीसरे सीज़न की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। सऊदी अरब के वज़ीर बराए मजहबी अमूर अल शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ अल शेख ने कहा है कि दुनिया भर से इस साल 30 लाख मुसलमान हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुमलिकत ने आज़मीन हज्जाज के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं। डायरेक्टर न्यू न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ने मिना में वज़ीर मजहबी अमूर से गुफ्तगू की है। आइए सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और इस वक्त मौजूद हूं मिना में, और मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त वज़ारत मजहबी अमूर और हज शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख मेरे साथ मौजूद हैं। और इस साल जो कोरोना की पाबंदियों के बाद पहली बार पूरे आबोताब के साथ हज का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है, और इस साल एक मुहताद अंदाज़े के मुताबिक 30 लाख से ज़ायद हुज्जाज इकराम इस वक्त मिना में मौजूद हैं और मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। तो शेख साहब से हम ये पूछेंगे कि ये हज जो है वो किस तरीके से गुज़िश्ता सालों के हज से मुख्तलिफ है, और इस साल की ख़ास बात यह है कि जो खादिम हरमैन शरीफाइन का ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोजेक्ट है, इसमें पूरी दुनिया से 90 मुल्कों से जो है वो आज़मीन को यहाँ बुलाया गया है, और मुख्तलिफ रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ जमा हैं। और ये पूछेंगे कि ये जो चैलेंजेस आए कि ये हज के इंतज़ामात इतने बड़े पैमाने पर होते हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस खुश असलूबी के साथ ये मामलात अंजाम को पाए। قناة التلفزيون وأشكر الأخ الكريم المذيع على قيامه في هذا اليوم وما تفضل به لنا على الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن. لا شك أنها جهود جبارة وأعمال متميزة نشأ منذ نهاية العام الماضي حتى هذا اليوم، وجميع أجهزة الدولة في المملكة العربية السعودية تعمل من أجل هذا اليوم ولتسهيل كل ما يساعد الحاج على أداء هذا الركن العظيم. जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर मजहबी अमूर। दुआ करते हैं कि ये जो फ़रीज़ा है हज का पूरी दुनिया से आए मुसलमान इससे मुस्तफ़ीद हों और ये बख़ैर खूबी अंजाम पाएँ।